Hello students, I welcome you to this class. Today I am going to tell you how to write a descriptive paragraph. It is the part of your writing section of English grammar. Some of you might be well familiar with this title. This year, CBSE has made certain changes, especially in the syllabus of English subject, for class 9th as well as class 10th. Now you can see on your screens the syllabus of English language and literature of class 9th for the session 2020-21 is given clearly. You can see here. This is the syllabus of English. There will be 3 sections. A. Reading section. B. Writing and grammar. C. Literature and supplementary reader. It will be the third question in your paper and it needs to be written in 100 to 120 words. First of all, we will discuss here what is the meaning of descriptive. The word descriptive means to describe something in detail. It means जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसको आपने डिटेल में लिखना है. To represent or give an account of something or somebody in words. And what is the meaning of paragraph? A paragraph is a group of sentences that flashes out a single idea. ओके तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को क्या कहते हैं. अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज एन एप्ट मीन्स appropriate and detailed account of any topic. यानी अगर आपको कोई टॉपिक दिया जा रहा है तो उसकी डिटेल्ड और एप्रोप्रिएट आपने डिस्क्रिप्शन करनी है, उसकी डिटेल देनी है. Through descriptive paragraph, a writer directly appeal to the imagination of the readers and they create a mental image of the subject without actually seeing it. It means डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में रीडर के माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर दी जाती है. राइटर इस तरह से अपनी राइटिंग करता है और उसके दिमाग में इस तरह की इमेज क्रिएट कर दी जाती है सब्जेक्ट के लिए कि उसको बिना देखे ही वो उसको समझ जाता है. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. First of all, we will write down in the center of the page topic, title. It will be related to person, place or object that is given. After this, we will write down the content that will be divided in 3 parts. First is introduction. Next is details. You will write down the topic details there. And last is conclusion. Here are some useful tips for writing effective descriptive paragraph. Number 1 is make detailed observation of what or who is to be described. Take down notes. यानी आपको जिसके बारे में डिस्क्राइब करना है उसके बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है उसके लिए कुछ नोट्स आपने लिखने हैं. Employ rich, descriptive words that make the subject being described come alive. आपको कुछ adjectives का भी यूज़ करना है वहाँ पर, कुछ descriptive words का यूज़ करना है जिससे कि वो जो subject है वो उसकी एक image बन जाए. Write what you see, hear, smell, touch, taste and experience. Create a sense of balance. Describe
ऑल पार्ट्स इक्वली, यानी आपको यहाँ पर उसके बारे में सारी बातें बतानी है कि उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने, पॉजिटिव भी बताने हैं, पूरी बात क्लियर करनी है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के कंटेंट को किस तरह से लिखते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, डायरी एंट्री और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस रहता है उसको एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई वॉज रियली टायर्ड सो आई सैट अंडर द ट्री टू रेस्ट। ये हम डायरी एंट्री में इस तरह की लाइन लिखते हैं, यानी मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मैं आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। और उसको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में किस तरह से लिखा जाता है, देखिए, आई वॉज रियली टायर्ड आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल एंड आई सैट अंडर शेड ऑफ अ ट्री टू रेस्ट। I could feel the lovely breeze of early winters blowing through my hair and refreshing fragrance of the flowers lighten up my mood. I could hear the melodious song of nightingale. आप यहाँ पर समझे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सेंसेस का, जो उसने फील किया है, जो उसके साथ वहाँ पर हो रहा है, उसको किस तरह का मूड उससे फ्रेश हो रहा है, उसमें सारी वहाँ पर जो बातें बताई जाएंगी वो डिटेल में बताई जाएंगी। ओके। सम वैल्यू पॉइंट्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोड्यूस द पर्सन with name and your relation with her, him. Next is personal and family background. Next, physical appearance. इसमें आप मेंशन करेंगे हाइट का, फेशियल फीचर्स का, हेयर टाइप, एज, इन सब के बारे में मेंशन करेंगे, यानी फिजिकली जो आपको उसमें पता चल रहा है, जैसे हेयर उनके कर्ली हैं, ग्रे हैं, वो मेंशन करेंगे। वो किस तरह के क्लोथ्स डालते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। वो ओवरवेट है, मस्क्यूलर हैं, थिन हैं, इसके बारे में। कॉम्प्लेक्शन भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, पेल, डार्क, फेयर, इस तरह की सारी बातें इसमें कंप्लीट मेंशन हो। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी आप वहाँ पर करेक्टर की क्वालिटीज़ को मेंशन करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी को मेंशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटेलेक्चुअल, कॉन्फिडेंट, सिंसियर, सेंसिटिव, इस तरह की क्वालिटीज़ को आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन एंड स्पेशलाइजेशन। आप उनकी स्पेशलिटी को भी मेंशन कर सकते हैं, वो किस तरह का काम करते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट है ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है उनके लिए, वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज अचीवमेंट्स, ऑनर्स, जो उन्होंने अभी तक अचीव किया है, उनके कुछ ऑनर्स हैं, वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल to clear the concept of writing a descriptive paragraph. Now let's read the question and try to understand what it says. Write a descriptive paragraph in about 100 to 120 words on my best friend. तो अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम टाइटल को लिखेंगे My Best Friend. Now first of all, in content we will write down here the introduction. Introduction में आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले उसके नेम से लिखा जाएगा, प्रिया हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड सिंस वी वर इन द मिडल स्कूल, यानी वो मुझे कहाँ पर मिली थी इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। She is a small and slim girl with beautiful blue eyes in a round, shiny and smiling face with curly dark hair. It means मैंने यहाँ पर physical appearance को describe किया है उसकी। She always wears clothes in a very elegant way.
ऐसे नहीं कि वो मैसी क्लोथ्स डालती है, मतलब बहुत एलिगेंट तरीके से वो डालती है हर कपड़े को। एंड हर अपीयरेंस रियली अपील्स टू द पीपल अराउंड हर। शी इज़ वेरी आउट गोइंग पर्सन। आउट गोइंग मीन्स जो आगे बढ़ के बात करता है इंसान। शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि वो सोशलाइज है, किसी तरह की कोई हेजिटेशन उसे फील नहीं होती। हु लव्स हैविंग फन ऑल द टाइम। शी इज़ रियली फनी and got a sense of humor, and wherever she goes bouts of laughter follows her. Bouts means rounds, यानी जब भी वो वहाँ किसी भी इंसान से मिलती है, कहीं पर भी जाती है, तो वो वहाँ का जो माहौल है वो हमेशा खुशनुमा बना देती है, लाइटन अप कर देती है उस जगह को, क्योंकि उसका जो नेचर है वो फ़नी है। वो इस तरह की उसके पास बातें होती हैं, ऐसे जोक्स होते हैं कि वहाँ पर हर कोई उसकी बात को सुनना चाहता है और उसकी बात सुन के सभी हंसते हैं। She is also very generous and kind-hearted person. She always take the initiative. Initiative means volunteer, खुद आगे बढ़ के काम करना, to help others. देखिए यहाँ तक हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स किए थे, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो हम इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे। Although she can be a little sensitive at times, like when someone nags her, nags means pops her, she suddenly bursts out in anger without thinking. हम यहाँ पर एक साउंड को भी शो कर रहे हैं जो उसने फील किया है कि अगर क्या होता है, उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, बड़ी चिल्ला के पड़ती है। बर्स्ट आउट यहाँ एक साउंड को शो कर रहा है, मतलब सेंस, उसने अपनी सेंसेस से उसको फील किया है। इसके बाद है प्रिया इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट and draw beautiful sketches during the weekends. She spends most of her time in her studio painting and drawing or listen to music. यानी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसमें इतने टैलेंट है, उसमें इतनी क्वालिटीज़ है, उसकी करेक्टर की सारी क्वालिटीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और उसमें कुछ एडिशन भी करा हुआ है। इन एडिशन टू दैट शी इंजॉयज सिंगिंग एंड इज़ एन एक्सीलेंट कथक डांसर। शी इज़ अ डाई हार्ड फूडी। डाई हार्ड फूडी मीन्स शी लव्स ईटिंग फूड। यहाँ पर हम एडजेक्टिव का भी यूज़ करेंगे हर जगह पर जितना पॉसिबल हो सके। एंड लव टू टेस्ट डिफरेंट क्यूजीन्स। एवरीबडी लाइक्स हर फॉर हर मोडेस्टी। मोडेस्टी मीन्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी वो शो ऑफ नहीं करती हैं, सबसे मिलती जुलती हैं। एंड सोशेबली शी हैज़ फ्रेंड्स एवरीवेयर। अब देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में कॉन्क्लूज़न करना है उस करेक्टर का, तो हम कैसे करेंगे। एट द एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू हैव सच अ गुड पर्सन लाइक प्रिया इन माई लाइफ एज अ फ्रेंड। I really enjoy her company. I never feel bored when I am with her. I still don't understand how time flies when we sit together and talk for hours. I am sure we'll continue to be intimate friends forever. यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसको उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, उसके ओपिनियन उसके बारे में बताए गए हैं और लास्ट में ये बताया गया है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका जो क्वालिटी टाइम, मतलब उसके साथ जब वो टाइम स्पेंड करती है तो वो उसका क्वालिटी टाइम रहता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करती है और पता ही नहीं चलता कि इतने टाइम तक अगर वो बैठी है उसके साथ बातें कर रही है तो टाइम कैसे निकल जाता है। और वो श्योर है इस बात के लिए कि वो हमेशा उसकी फ्रेंड बनी रहेगी। तो आपको यहाँ पर शायद समझ में आ ही गया होगा कि हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को किस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और किस तरह से उसकी डिटेल लिखते हैं।